Jai Gurudev and good morning to all. Students, welcome again in the economics class. Students, today we will study the chapter Theory of Demand. Theory of demand, student, you have heard about the demand and desire. Demand and desire are the two words, but they are in ordinary life we are using in this interchangeably, but in economics both are having that different meaning. Desire, desire means wish to buy a commodity or desire to buy a commodity, and demand in economics means the desire to buy a commodities which has sufficient purchasing power and willingness to spend. So both are different. How it is different? Desire means our wish, and we have several desires that we want to purchase this, we want to purchase that. हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हम लेना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम अमेरिका घूम के आ जाएं, हम चाहते हैं कि हम एलईडी टीवी ले लें, या हम बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं, डिज़ायर करते हैं. बट एवरी डिज़ायर कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड. हर डिज़ायर जो है वो डिमांड नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि डिमांड मीन्स इट इज़ द विश डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी, but it's not only it is a desire. We desire to buy a commodity when we are having sufficient purchasing power and willingness to spend. मीन्स हमारे पास सिर्फ इच्छा ही नहीं, उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा ही नहीं, बल्कि हमें उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, प्लस हमारी उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए. दैट मीन्स डिमांड मीन्स द कमोडिटी विच वी विश टू बाय, विच वी वांट टू बाय, बट not only we want to buy, but we are ready, we are willingly wants to spend the money for it, and we are having that much purchasing power. So then that means a commodity can be said to be a demand. So students, you can understand what is the difference between desire and demand. Desire means हमारी इच्छा किसी चीज़ को लेने की, और वो इच्छा तभी डिमांड बन सकती है when we are having sufficient purchasing power, means when we are having sufficient money or income to purchase that commodity, then the particular commodity is known as demand, or the demand for a commodity. Now, demand and quantity demanded. So what is the definition of demand? Demand, students, demand means it refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of the commodity. Demand, demand का मतलब है कि different possible quantities of a commodity means किसी भी commodity की different quantities means how much quantities we wants to buy that the consumer is ready to buy. Consumer ready है उसको खरीदने के लिए at different possible price of the commodity means at whatever rate the commodity will be in the market, so the consumer is ready to purchase the commodity, different quantities of the commodity at the possible price. So it is known as demand. मीन्स जब कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए उसकी इच्छा है उसे खरीदने की, और वो चाहता है वो खरीदना, और साथ में उसके पास उतना पैसा होना चाहिए और उतनी पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ डिमांड कहलाएगी. नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड, स्टूडेंट्स, क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक कमोडिटी टू बी परचेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस. दोनों में डिफरेंस है. डिमांड का मतलब कि हम कोई भी कमोडिटी को हम डिमांड हमारी तभी हो सकती है जब हम उसे खरीदेंगे और उतना मनी और हमारी विलिंगनेस टू स्पेंड होनी चाहिए, हमारी उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. बट क्वांटिटी डिमांडेड, दैट व्हेन आवर डिमांड इज affected by price, that price of the own commodity. Suppose we wants to purchase a commodity, और हम जब उस commodity को लेने जाते हैं, suddenly we have heard that the price of the commodity increases. So that means we are not able to purchase the commodity because we are not having that much money. And when we find that the price of the commodity decreases, so we can purchase more of the commodity. So when there will be change in the price of the commodity, and because of the change in the price of that specific commodity, how much quantities the consumer is buying is known as quantity demanded. जब किसी भी commodity की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसे खरीदनी है, वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ओन प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर विल परचेज लेस, और अगर प्राइस कम है तो कंज्यूमर विल परचेज मोर. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन भी है. अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं, और कोई चीज़ हमें महंगी मिलती है तो हम उसको कम खरीदते हैं. इसीलिए प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन मीन्स अपोजिट रिलेशन है. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. इट रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी मीन्स वो स्पेसिफिक क्वांटिटी
वो स्पेसिफिक कमोडिटी की वो क्वांटिटी की थी, आप जितना उसको खरीदना थे, यू वांट टू परचेज 1 यूनिट्स और यू वांट टू परचेज 2 यूनिट्स, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज बियॉन्ड आवर लिमिट सो वी आर नॉट एबल टू परचेज, और अगर हमारी लिमिट के अंदर है तो हम उसको खरीद सकते हैं। और वही कमोडिटीज अगर उस टाइम पीरियड में सडनली प्राइस कम हो जाता है तो वी विल परचेज मोर, और प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो वी विल परचेज लेस। सो क्वांटिटी डिमांडेड स्टूडेंट्स, यू नो दैट जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं अगर उसका प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज होता है तो हमारी डिमांड भी अफेक्ट होती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड मीन्स हाउ मच commodities he wants to buy. So students, either I think you can understand that what is demand and what is quantity demanded.